partnership between Bankai Ventures and Haribo? So Bankai Ventures has an AI lab, and also they are coming in with investments to take the organization global. Their idea is that in every country we have the same problem: food adulteration, and then natural food, organic traceability. Technology is lacking. Certificate तो आप ले सकते हैं. You can take a certificate today, but is the certificate valid after 3 months? We don't know. So they saw us as a model AI where we incorporated AI. So we did not invent anything. I was speaking with your colleagues from the press. This technology exists since very long, but it was used for culling of animals. We reversed it to use to protect animals. So they were very impressed by this, and we will be working with them. We're using blockchain for supply chain. We are using the same technology even for now farms to make sure that whatever you eat is protected. So the end-to-end technology intervention and expansion globally is where Bankai Ventures is coming in. And what new products, services, or innovations can customers expect as a result of this partnership? So two ways. Being based in the US, having that exposure, global exposure as well, and ISKCON, as you know, we are in approximately every country except a few. Uh, our idea going ahead would be to adopt country-wise food, country-wise different products, and inculcate this habit about especially in the dairy industry, where how can we create a cruelty-free ecosystem, and out of that create byproducts. So like cheeses, different kind of products, which everybody आज अगर आप जाएं product people have there's a lot of innovation in the product, but घूम फिर के product की quality, product traceability is not there, right? If there are 100 brands getting launched every day, where is it coming from? Where is it getting processed? Nobody knows. So this is where we want to come in and play that. There's a very big niche, and there's a very big gap in the system which we want to come in. That is why I was saying we are not looking at expansion in a very big way. We've been doing this for the last 7 years. Nobody knows us. Prabhuji did not allow us to come out till we don't fix everything. And thanks to Krishna's blessing and his guidance, now and Kushal, who's my business guru, now we are expanding globally. So like I said, hopefully we could be a spiritual unicorn. Thank Hare you. Krishna. My question is the product of Haribo available on the e-platforms, and how are you managing the consistency? So I'll take your first question. We are in Blinkit, we are in Zepto, we are also in Big Basket and few other channels. The second question I think is a very critical question about consistency as demand shoots up. Like I said, and I've been saying it over and over again, in Mumbai, as a proof of concept, we have only 10,000 liters of Ahimsa milk to be given. We will not go above 1 liter above that. When we launch in Delhi, we will first collaborate with farmers in that region who are willing to do cow protection for life, willing to use our technology. When he is convinced that the system is foolproof, then we will go ahead and do it. We are in no hurry. That is why this venture is also for them. It is a social entrepreneurship project. They are not looking at a return on investment. Neither is a Desai family, as you saw. They invested the movie when there were no investors. Today it is given 600% return on investment. They've been mentoring me for the last 6 years, and we have not advertised anywhere. So that is our primary goal. So that is where we will make sure that the quality is consistent, and the quality standard is sitting right in front of you. Thank you. Hare Krishna. My question is to Ji. Prabhuji. Prabhuji, how is the collaboration between Haribo and Govardhan Village, Eco Village, and further expansion plan can please come? जी तो सबसे पहले भारत में जितने मंदिर हैं, मंदिर में प्रतिवर्ष 20 करोड़ लीटर दूध अंदाज से लगता है अलग अलग कार्यों के लिए, और लगभग 2 करोड़ लीटर घी भी लगता है. तो मंदिर अपने आप में आपको पता ही है, प्राचीन भारत में सनातन धर्म सभ्यता जब बहुत प्रखर रूप से उजागर थी,
तो मंदिर आर्थिक विकास का भी एक केंद्र था। पुष्प बनाने वाले, पुष्पहार बनाने वाले, भोजन बनाने वाले और कई इस तरह के लोग, आसपास के हजारों एकड़ जमीन मंदिर की होती थी, तो किसान और इस तरह से। अब हम लोगों ने विचार किया कि सबसे बड़ी समस्या है एडल्ट्रेशन। आपको जानकर शॉक हो जाएंगे आप कि लगभग 40% मिल्क भारत में जो चल रहा है उसमें यूरिया और बाकी अलग अलग प्रकार की चीजें मिलावट के साथ, घी में तो पता नहीं क्या क्या टैलो और क्या क्या डालकर वो लोग चला रहे हैं। मसालों में भी आप देखो तो धनिया पाउडर वगैरह में हॉर्स डंग और डोंकी का डंग वगैरह मिक्स करके डाला जाता है। लाल मिर्ची पाउडर में मार्बल का डस्ट मिलाया जाता है। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट नीड था कि हम अपने मंदिरों में भगवान को जब भोग लगा रहे हैं और भक्त लोग बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे पास प्रसाद के लिए आ रहे हैं। आपको पता ही है भारत भर में इस्कॉन 99 किचन्स टोटल चला रहा है मिड डे मील्स के लिए, और 40 लाख मील्स पर डे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और अभी कुंभ मेला में हम लोगों ने अडानी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके 60 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट किया। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस दृष्टिकोण से प्योर प्रोडक्ट्स कैसे तैयार करें, तो इसके लिए भगवत गीता के तात्पर्य में कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृतिरम्हे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षा। पहले आहार शुद्ध होगा तब सत्वगुण आएगा, तब जाके स्मृति शुद्ध होगी, तब फिर धीरे धीरे हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएंगे। तो इसलिए हरिबोल के साथ हमने इस तरह कोलैबोरेट किया कि जो हरिबोल के फाउंडर कुशल देसाई साहब, वो गोवर्धन इको विलेज के भी प्राइमरी डोनर्स में से हैं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपना बिजनेस स्किल्स यूज करके इस पर्टिकुलर मिल्क डेयरी एंड नॉन डेयरी, तो मूविंग फॉरवर्ड हम चाहते हैं कि डेयरी से ज्यादा हम लोग का मिलेट्स, मसाले और नॉन डेयरी में ज्यादा हम लोग का फोकस रहे, क्योंकि डेयरी में अहिंसा के साथ स्केल अप करना एक लिमिटेड उसका है। तो मैं स्वयं जाकर पालियाड में घूम के आया हूँ और यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो सब एक गुरु जी के शिष्य हैं पालियाड डिस्ट्रिक्ट में, और उनके आदेश के अनुसार ये लोग इसको अपना रहे हैं। तो देयर इज अ स्पिरिचुअल बेसिस टू द सप्लाई चेन ऑल्सो। तो अगर आप पालियाड में जाओ और किसी को भी कभी भी वहां जाना हो तो हम उनको बड़ी स्वेच्छा से लेके चलेंगे। तो वहां पर जो गुरुजी के मंदिर भी बने हुए हैं और भैलू भाई करके उनका नाम है, और उनके जितने भी फार्मर्स उनसे जुड़े हुए हैं वो सब एक ही पंथ से जुड़े हुए हैं, एंड इट इज पार्ट ऑफ देयर सेवा टू देयर गुरु। तो इसके लिए वो लोग इस तरह से उसको बनाकर रखे हैं। तो हरिबोल का और गोवर्धन विलेज का इसी प्रकार से नाता शुरू हुआ कि कुशल जी वहां से जुड़े थे और हमारी भी नीड बढ़ रही थी। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इसको आगे बढ़ा सकते हो जिससे कि हमारे प्योर फूड की नीड पूरी हो सके। शुद्धता वाज अवर नीड। तो ये हम लोग का पहला वो था। और बाद में फिर यहाँ पर जब सप्लाई चेन की बात आई, स्केल अप की बात आई, तो मैंने मुकेश भाई से रिक्वेस्ट किया। तो फिर उनके सौजन्य से फिर रिलायंस स्टोर्स में हम लोगों को एक विशेष स्थान दिया गया है। तो ऑलमोस्ट अभी 250 रिलायंस स्टोर्स में ये हरिबोल के प्रोडक्ट्स जो चल रहे हैं, और जो रेगुलर लोगों को जिस तरह से वो चार्ज करते हैं वैसा ना करते हुए एज अ गुडविल जेस्चर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिसके कारण अब हरिबोल का सप्लाई चेन और कस्टमर तक पहुंचने का स्केल बहुत अधिक बढ़ गया है। और ऑनलाइन पे आप हरिबोल का जो है ऑर्डर कर सकते हो, और जस्ट ऑनलाइन अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो डेली आपके घर पर विद इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन
आपका सप्लाई ऑफ डेली मिल्क स्टार्ट होगा। तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि भाई और भी लोग इस तरह गो सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काउज हैव टू बी प्रोटेक्टेड लोकली। तो इसको बहुत ज्यादा हम लोग इसका जो है विस्तार करना भी पॉसिबल नहीं है एक स्थान से, लेकिन बेस्ड ऑन दिस अलग अलग जगह पर अगर देसी गायों का कोई बहुत बड़ा एक लॉट मिले और वहां पर फार्मर्स भी तैयार हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स की स्वीकृति, बिना फार्मर्स के इसमें जुड़ना ये संभव नहीं है। इसीलिए दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि आज काउ स्लॉटर का इंडस्ट्री 95,000 करोड़ के ऊपर है। तो काउ यूरिन इत्यादि से जो विभिन्न प्रकार के दवाइयां और कॉस्मेटिक्स बन सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च हो, और बेस्ड ऑन दैट जब हमारा FMCG बेस्ड ऑन काउ यूरिन, काउ डंग एंड ऑल ऑफ दिस ग्रोज मोर देन 95,000 करोड़, तब जाकर लोग समझेंगे कि भाई गो हत्या बंद होनी चाहिए। तो ये भी हम कहना चाहते हैं कि इस्कॉन के अंतर्गत दूध, घी, दही इत्यादि को छोड़कर हम गोमूत्र और गोबर, इससे रिलेटेड जो कोई भी उत्पादन हो सके, या तो ऊर्जा का, या तो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का, या FMCG प्रोडक्ट्स का, इसको भी हम आगे बढ़ावा करना चाहते हैं। और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं हम उन सबको प्रोत्साहन देना चाहेंगे। सवाल आपसे है कि there are so many players in the market with similar product of yours, and probably also there's a lot of adulteration. When adulteration comes, the rate affects. So how that will you cope up with the rates? So, you know, there is a very famous saying, if you want purity, there is a price to be paid. So, जैसे प्रभु जी ने बोला, ghee is available at 600 rupees, 400 rupees, 300 rupees, and ghee is available at, as Prabhu said, there is a minimum requirement for any product to be made. आज आप एक फोन हाथ में लेके बैठे हैं, आज आपने कपड़े पहने हैं, there is a certain minimum requirement of that product, manufacturing cost, labor cost, everything. That is why we have been very consistent, not only from now, from the last 7 years, on one thing only, our ethics. Yes, there are hundreds of brands available, there is price competition. That is why I would like to thank, Prabhuji, to speak with the Ambani family. They are supporting us. We are not looking at rampantly expanding just numbers. Like he said, for us ethics is very important. If we are not able to make a supply chain of the product to a quality of ISKCON standard, we will not do it. It's okay. We don't have to jump in the race. That is why Bankai Ventures came in and said we want to do a long-term collaboration. Even if we launch in other countries in a small, I mean, of course, US was one of our main, because as you know, the market is very big. And like Honorable Prime Minister says now, the globe is open for India. We want to make sure that whatever we deliver consistent quality and a certain, there's a very famous saying, aapko pata hoga the story when Ferrari was getting made and they asked him, how many cars will you make? He said, no, I will have how many satisfied customers. I'm not really worried about how many cars I can make. So for us, customers are very important. People who we connect with are very important. For us, it is people, prosperity, and then products. So if these two P's are not met, we will not launch the product. Thank you. Again, over there, will your product will be available in all temples all over? Yes, it's already there. अगर आप जाएं जुहू में, चौपाटी में, a lot of places in India, in the US it is available. We are now expanding it across the world in other parts as well. As you know, as Prabhuji said, dairy is very sensitive. A lot of countries permit and don't permit. So we are getting into millet-based, ready-to-eat. With few Prabhuji's recipes, we even launched khichdi, which we got very good feedback from. So we did our experiments. We did now we are scaling up to whatever the quality and the distinct standards we can do. Yes, all the temples will be one of our basis of the products. Apart from temples, are you planning to
we haven't really thought about that right now. It's too early to come into our own retail and all. We would first, like he said, thanks to the Ambani family, we are in Reliance, Nature's Basket, other tech online quick com platforms. Similarly, in the US, we are looking at, we have strategic partners now to expand across the ethnic stores, non-ethnic stores. We have participated in a lot of fairs and got very good feedback. Right now, for the last 3 years, I was given very strict instructions from my business guru that take feedback, learn where you can make a mistake, then when time comes, we will scale up. Thank you. There are a lot of Hi Krishna. Prabhuji, what do the two dots in the logo signify? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन किया। जो लोगो डिजाइन हुआ था उस समय विचार ये था कि क्योंकि हम लोग हरिबोल मतलब सनातन धर्म पद्धति के अंतर्गत है, तो संस्कृत में जैसे विसर्ग होता है, तो थोड़ा उस एक ट्रेडिशनल टच को सिग्निफाई करने के लिए कि भाई संस्कृत और वैदिक सनातन धर्म के शिक्षाओं पर आधारित और उनसे प्रेरित ये पूरा अर्थ का प्रयास होगा। तो धर्म की आधारशिला पर अर्थ खड़ा है, ऑन द फाउंडेशन ऑफ धर्म देयर इज दिस बिजनेस एंटरप्राइज, उसको सिग्निफाई करने के लिए वो दो डॉट्स रिप्रेजेंट धर्म है कि नहीं। तो थोड़ा मिलेट्स के ऊपर मैं सर से निवेदन करूंगा, नवलजीत सर से, क्योंकि मिलेट्स की खिचड़ी रेडी टू ईट हम लोग के बहुत पॉपुलर है, और मिलेट्स मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है सर होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि पंजाब के एग्जाम्पल लिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इसी तरह से आज अगर हम ट्राइबल एरियाज में जाएं तो ट्राइबल एरियाज ओरिजिनली ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बट धीरे धीरे जस्ट बिकॉज कि आपको गेहूं प्रमोट किया गया क्योंकि उसमें एमएसपी था, इसी तरह से राइस में एमएसपी था, तो काफी सारे फार्मर्स ने या एक पूरा एक स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया कि राइस और जो गेहूं है उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और जिस तरह के सीड्स हैं जो आज से 40 साल पहले जो गेहूं एमपी में बनती थी वो गेहूं आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ना सिर्फ इससे ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी बढ़ता है, बट गेहूं और चावल के जो अपने अदर इश्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर का है, या बट जैसे जैसे हम मिलेट्स पे जाते हैं, मिलेट्स जो कोर्स मील्स हैं उसको उसमें डायबिटीज के भी चांसेस कम है, फाइबर्स भी ज्यादा है, पेट के लिए भी अच्छी है, और इतनी तरह की वैरायटीज हैं कि आपकी हर आदमी की जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, उसके हिसाब से है। और सबसे बड़ी बात जो है कि गेहूं और चावल में और ज्यादा जो पानी की जो जरूरत होती है, आज वाटर लेवल पंजाब में 25-30 फीट पे था जो कि आज 400-500 फीट तक पहुंच गया। एक वाटर, दूसरा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो कि चावल और गेहूं में चाहिए, और मिलेट्स में आपको बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड ओवर जो सुपर फूड्स की हम बात करते हैं वो कुछ नहीं है, हमारे जो मिलेट्स हैं उसी को आज वो सुपर फूड्स के नाम से बेच रहे हैं। तो हमने जो महाराष्ट्र में भी जो एक्सपेरिमेंट किया, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ मिलेट मिशन। और मिलेट मिशन आप लोग सब जानते ही हैं कि पिछले 4-5 साल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है, उसके तहत सभी ना कि सिर्फ एक मिलेट्स को लेके प्रमोट किया जा रहा है, बट धीरे धीरे जो मिलेट्स की डिमांड है वो वर्ल्ड ओवर भी बढ़ रही है, और इंडिया में भी हम लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ राइस नहीं खाना है। अगर राइस खाना भी है तो काफी देसी तरह के राइस हैं, इसी तरह से जो मिलेट्स में मल्टीपल वैरायटीज हैं। और जैसा हमने जो कुलिनरी जो थाली, एक लोकल थाली बनाई, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया प्रभु जी ने कि जितनी तरह की मिलेट्स हैं उससे क्या क्या डिफरेंट डिशेस बनाई जा सकती हैं। तो एक थाली बनाई जिसमें लगभग 36 तरह की डिशेस थी, लोकल चटनी थी, हर मिलेट डिफरेंट मिलेट्स का खिचड़ी था, उससे आटा था, और जैसे थेपला टाइप होता है तो उस तरह की भी चीजें थी, वो मिलेट से बनाई गई।
तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इस तरह का फूड फेस्टिवल करेंगे, स्पेशली जो लोकल कुजीन्स हैं, लोकल थाली है, मेरी माटी मेरी थाली, तो उसमें भी आप लोगों को जरूर एक मौका देंगे कि आप लोग देखें कि कितनी अच्छी डिशेस जो मिलेट से बनाई जा सकती हैं। Prabhuji, from a IT background to all this God Seva, and again now we discuss about you having the millets on the head and have a different. How could you manage everything? Or how is that possible? इसको कहते हैं भजन से भोजन। तो जैसे डॉक्टर नवजीत सर ने कहा, देखिए हर व्यक्ति के जीवन में सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है भोजन की। लोग फिर भी बिना भोजन के निकाल लेते हैं दिन, लेकिन बिना भोजन के समय निकालना बड़ा कठिन है। लेकिन कलयुग की दुविधा ये हो गई कि भोजन भी, चाहे पैसा भी दो तो शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, जैसे इन्होंने बताया। तो आजकल डबल इनकम वाले वर्किंग फैमिलीज हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी पे हैं, भोजन बनाने के लिए समय नहीं मिल पाता। चलो जोमेटो से यहाँ वहाँ से ऑर्डर करने का एक कल्चर आ गया। स्टूडेंट्स जाकर अलग अलग कॉलेजों में, हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए होम कुक्ड टाइप फूड कैसे पाया जाए, तो इसके लिए रेडी टू ईट जो बताया, जो कि मिलेट्स बेस्ड खिचड़ी, आप केवल जो है उसको गर्म पानी में मिक्स करो तो पूरा रेडी खिचड़ी आपका बन जाता है। थोड़ा ऊपर से घी ऐड कर दो तो ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्रेश बनाया हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि मैं ज्वाइन किया था इस्कॉन हरे कृष्णा हरे राम मूवमेंट लगभग 33 वर्ष पूर्व, इस विचार से कि कैसे मानवता के अंदर में सुधार ला सकूं। आध्यात्मिक से मैंने शुरू किया, फिर मानसिक पर आया, फिर देखा कि कलयुग की ऐसी दुर्गति हो रही है कि शारीरिक भी लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसीलिए जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है कभी कभी बिजनेस में। एक कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर मालूम पड़ता है ये करने वाला नहीं है, तो फिर खुद ही करने लगते हैं। तो वैसे हम तो मंत्र जाप और भगवत गीता सिखाना शुरू किए, फिर देखा मानसिक चिंता लोगों की बढ़ रही है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करने लगे। फिर देखा लोग तो प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे, बोले क्यों, बीमार हैं। क्यों? क्योंकि दूषित भोजन कर रहे हैं। तो इसलिए शुद्ध मन और फिर शुद्ध अन्न दोनों को लेकर हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण।